নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ সৌদি আৰবত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 42 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু বাছ আৰু তেলৰ টেংকাৰৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা মক্কাৰ পৰা মদিনালৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত দবদবকৈ জ্বলি উঠে বাছখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত আছিল 20 গৰাকী মহিলা 11টি শিশু মৃত লোকসকল হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা হৈছে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডিৰ শোক প্ৰকাশ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে প্ৰশাসনে মদিনাৰ পৰা প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মুহৰাছ বা মুফৰিয়াত অঞ্চলত নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাছখনত শুই আছিল বহু যাত্ৰী বাছখন খুন্দামৰাৰ লগে লগে দবদবকৈ জুই লগাত বাহিৰলৈ ওলাবলৈ সুবিধা নাপালে যাত্ৰীসকলে যাৰ ফলত বাছৰ ভিতৰতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে যাত্ৰীসকল এই ঘটনাৰ পিছতে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সৌদি আৰবৰ দূতাবাসৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আন এক ভয়াবহ ট্ৰেজেডিয়ে জোকাৰিছে দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব ইয়া সৌদি আৰবত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এটা অনাকাংক্ষিত এটা অবাঞ্ছিত দুৰ্ঘটনাত 42 গৰাকীকৈ ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু বাছ আৰু তেলৰ টেংকাৰৰ সংঘৰ্ষ আৰু তাৰ পিছত চাওক এই বিভীষিকাময় এটা পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে বাছখনত অগ্নিসংযোগ হয় টেংকাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ আছিল আৰু সেই মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিমিষতে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় বাছখন নিশা প্ৰায় 1:30 বজাৰ ঘটনা সকলো যাত্ৰী শুই আছিল শুই থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা যাত্ৰীসকলে ওয়াদি নাপালে কি কৰিব কি নকৰিব কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ পৰিল যাত্ৰীসকল আৰু বাছৰ ভিতৰতেই জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিল আটাইসকল যাত্ৰীৰ অৰ্থাৎ 42 গৰাকীকৈ ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু 20 গৰাকী মহিলা নিহতসকলৰ ভিতৰত 20 গৰাকী মহিলা আছে 11টি শিশু আছে আটাইসকল তীৰ্থযাত্ৰী হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা হৈছে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তেলেংগানা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডিৰ শোক প্ৰকাশ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে প্ৰশাসনে মদিনাৰ পৰা প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মুহৰাছ বা মুফৰিয়াত নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত সংঘটিত হয় এই ট্ৰেজেডি দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাছখনত শুই আছিল সকলো যাত্ৰী আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সৌদি আৰবৰ দূতাবাসৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে অতি মৰ্মান্তিক অতি হৃদয় বিদাৰক এই দুৰ্ঘটনা हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है कंफर्म नहीं है बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और এই মুহূৰ্তত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক খালিদ মোল্লাৰ সৈতে যে খালিদ जी ये हादसे के बारे में पूरी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे जयंत ये सऊदी अरेबिया को उम्रा पिलग्रिमेज के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं हज के सीजन के अलावा जहां जाते हैं तो उनको उम्रा पिलग्रिम कहा जाता है तो तेलंगाना के करीब 43 पिलग्रिम्स जो इस बार हुए थे और उसमें ये माना जा रहा है कि देर रात का हादसा बस और डीजल टैंकर के टकराने से हुआ है हाईवे के ऊपर उसमें करीब 42 पिलग्रिम शायद मारे जा चुके हैं इसमें लोकल टाइम सऊदी टाइम के हिसाब 1:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है और ये जो पिलग्रिम्स हैं 2 शहरों में जनरली जाते हैं
एक मक्का शहर है और एक मदीना शहर है। तो ये बस मदीना को जा रही थी और मक्का का जो पिलग्रिमेज के रिचुअल्स होते हैं वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर ली थी, और आधी रात होने की वजह से ये सब के सब नींद में थे। तो जब ये डीजल टैंकर से लग्जरी बस टकराई है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग उसकी जद में आ गए हैं। इसके बाद न्यूज 18 को जद्दा से जो लोकल जानकारी मिली है न्यूज 18 को, उसके अनुसार करीब 20 महिलाएं सवार थी बस में और 11 बच्चे थे। उसके अलावा ये भी हमें पता चला कि गौसिया बेगम और कुछ दूसरे पिलग्रिम्स जो हैदराबाद के हैं उनकी वहां डेथ हो चुकी है। एक पिलग्रिम के बारे में सिर्फ ये जानकारी मिली है कि शायद वो जिंदा है। और एक जानकारी ये मिल रही है कि सऊदी मिशन ने इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर एस्टेब्लिश किए हैं और इसी तरह से तेलंगाना के सेक्रेटरिएट में एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया है जिसने और अपने अलग हेल्पलाइन नंबर्स वो भी जारी किए हैं। यह हादसा बेसिकली मुफरिहात नाम का एक छोटा सा गांव है जो मदीना से बिल्कुल करीब है, वहां हुआ था। मुझे याद है कि जब हम न्यूज 18 की टीम के लिए के साथ में गए थे वहां न्यूज कवरेज के लिए ठीक 5-6 साल पहले, तो उसी हाईवे से हमने भी सफर किया था। ये बहुत ही लंबे और डिस्टेंस के हाईवे हैं जो जिसमें बड़ी स्पीड में गाड़ियां चलती हैं। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। कुल मिलाकर के इस वक्त जो कंट्रोल रूम कायम हुआ है उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सऊदी एम्बेसी, ये तीनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना राज्य के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और तेलंगाना के डीजीपी सुधाकर रेड्डी, इनको कोऑर्डिनेशन के लिए नॉमिनेट किया है जो जानकारी ले रहे हैं। साथ ही भोंगीर डिस्ट्रिक्ट के किरण कुमार रेड्डी जो वहां के एमपी हैं, उन्होंने भी जो है इस सिलसिले में अपना अपडेट रखने के लिए लोगों को मोबिलाइज किया है। रिलीफ मेजर्स वो पूरे जो है वो सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी के थ्रू किए जा रहे हैं। कुल मिला के यही जानकारी मिल रही है। जी खालिद जी, जो 42 लोग मारे गए हैं, हाँ जी, जो 42 लोग मारे गए हैं उन लोगों का नाम परिचय सामने आया है, ताकि सारे लोग हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं। तेलंगाना राज्य के मैक्सिमम पिलग्रिम्स हैं जिसमें ज्यादातर हैदराबाद शहर के हैं जी। और अभी अभी हमें जो जानकारी मिली है हैदराबाद से, उसके अनुसार एक फ्लाई जोन नाम की ट्रैवल एजेंसी है जो शहर के एक बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके जिसको मेहदीपट्टनम कहते हैं, वहां इसका ऑफिस है। कुल 2 ट्रैवल एजेंसीज हैं जो इन पिलग्रिम्स को वहां लेके गई थी। उसमें से फ्लाई जोन एजेंसी एक है जो पिलग्रिम्स का और फॉरेन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को वीजा दिलाने और टिकटिंग वगैरह का भी काम करती है। तो उसके मुताबिक एक डेड जो है उसका नाम आया है जो गौसिया बेगम कहलाती हैं। बाकी और विक्टिम्स के 4-5 विक्टिम्स के ही सिर्फ फोटो और डिटेल सामने आए हैं, जिसमें 4 के एमपी असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने उन ट्रैवल एजेंसीज की डिटेल्स और सऊदी एम्बेसी के साथ में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके ये शेयर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ऑफिशियली 42 डेथ और उनके विक्टिम्स के सारे डिटेल्स वहां से नहीं पहुंचे हैं। जी खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की ये जानकारी हमें देने के लिए।